Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature lesson, The Best Christmas Present in the World. Okay, this lesson has been written by Michael Morpurgo. Okay, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mentions one such date and events. A war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? Do you know which events the dates before referred to? Okay, 4 July 1776, 6 August 1945, 12 April 1961, 17 December 1903, 30 January 1948, 20 July 1969. Okay, यानी स्टूडेंट्स विश्व इतिहास में यानी विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी तिथियां अथवा समय अवधियां हैं जो कि इतनी महत्वपूर्ण हैं कि सभी उनके बारे में जानते हैं और उन्हें याद करते हैं। यह कहानी जिसे आप अभी पढ़ोगे ऐसी ही एक तिथि और घटना 1914 में अंग्रेजों और जर्मन वासियों के बीच एक युद्ध का उल्लेख करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप गैस कर सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? ओके, I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch mark all down one side. It was going for every little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. Okay, यानी in this stanza author says that मैंने इस मेज को ब्रिजपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में देखा था। दुकानदार ने कहा यह 19वीं शताब्दी के आरंभ का बना हुआ था और ओक की लकड़ी का था। मैं भी एक डेस्क खरीदना चाहता था, किंतु ये हमेशा बहुत महंगे होते थे। यह मेज एक बुरी स्थिति में था। उसका ऊपरी आवरण कई जगह से टूटा हुआ था और टांग की कैसे मरम्मत की गई थी और इसके एक तरफ सब जगह जलने के निशान थे। यह बहुत कम पैसों में मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इसे खरीद सकता था। यह एक जोखिम भरा कार्य था और एक चुनौती भी थी, किंतु मुझे इस जोखिम को उठाना था। मैंने दुकानदार को पैसे दिए और इसे गैरेज के पीछे अपने काम करने वाले कमरे कार्यशाला में ले गया। मैं इस पर क्रिसमस की शाम वाले दिन काम करने लगा। ओके, यानी क्रिसमस की शाम थी और मैं इस पर काम करने लगा। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. Please turn over. Okay, it looked like water damage to me. Both are and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to see it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space. Underneath a secret drawer, there was something in there. I reached in and took out a small bag in tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples.
It usually does. Okay. Inside the box, there was an envelope. Okay. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeford, Dorset. I took out the letter and unfolded it. Okay. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1940. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर के आवरण को पूरी तरह हटा दिया था और इसके खाने बाहर निकाल लिए। ठीक है, इसके खाने को बाहर निकाल लिया और इसकी सजावट परत हर तरह से उखड़ी हुई थी। यह मुझे पानी के संपर्क में आई लगती थी और आग और पानी दोनों ने स्पष्ट रूप से मेज को नुकसान पहुंचाया था। अंतिम दराज बहुत कठोरता से फंसी हुई थी। मैंने इसे आराम से खोलने की बहुत कोशिश की। अंत में मुझे इस पर बल का प्रयोग करना पड़ा। मैंने इस पर जोर से एक मुक्के का प्रहार किया और यह दराज खुल गया। इसके नीचे छोटा स्थान था, एक गुप्त दराज थी, सीक्रेट ड्रॉअर था। इसमें कुछ था। मैंने इसमें हाथ डाला और एक छोटा काला टिन का बक्सा निकला। इसके ऊपर एक छोटी लाइनदार कागज चिपका हुआ था। ओके, इसके ऊपर एक छोटा लाइनदार कागज चिपका हुआ था और इस पर हिलती सी लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। जिम का अंतिम पत्र जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ। इसे जब समय आए तो मेरे साथ दफना दिया जाए। मुझे पता था कि मेरा इस बक्से को खोलना गलत होगा, किंतु जिज्ञासा ने मेरे निर्णय को बदल दिया। ऐसा अक्सर होता था। इस बक्से के अंदर एक लिफाफा था। ओके, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। इस बक्से के अंदर एक लिफाफा था। इस पर लिखा था मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिजफोर्ड, डोरसेट। मैंने पत्र निकाला और इसे खोल दिया। यह पेंसिल से लिखा गया था और इस पर दिनांक अंकित थी 26 दिसंबर 1914। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you. I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. Okay. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, I am ashamed to say, is that Frist began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas!" When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Frist! Same to you." I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lads!" someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the paper pad, and another, keep your heads down." I told the man, "It's a trick," but it wasn't. ओके, यानी ये जो लेटर लिखा गया है इसमें इन दिस लेटर देखिए क्या कहा गया है इसमें। यानी प्यारी कोनी,
मैं आज बहुत प्रसन्नता से यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी बहुत ही अजीब घटना मेरे साथ हुई है और मैं तुम्हें इसे तुरंत बताना चाहता हूँ। हम सब कल सुबह अपनी खंदकों में खड़े थे। यह क्रिसमस की सुबह थी। यह सुबह बहुत ही शांत और इतनी सुहानी थी जो कि मैंने आज तक नहीं देखी थी। इतनी ठंडी और कोहरा युक्त जितनी एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि हमने इसे आरंभ किया, किंतु सत्य जिसे बताते हुए मैं शर्मिंदा हूँ यह है कि फ्रिज जर्मनी को पुकारने का एक सामान्य नाम है। इसे आरंभ किया। शुरुआत में किसी ने दूसरी तरफ के खंदकों पर सफ़ेद झंडा लहराता देखा। फिर वे हमें सीमा पार से पुकार रहे थे। टॉमी, अंग्रेजों को पुकारने का एक सामान्य नाम। क्रिसमस मुबारक हो। जब हम आश्चर्य से बाहर आए अर्थात अपने पर काबू पाया, तो हम में से कोई पुकारा, फ्रिज, तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। मैंने सोचा कि वह अंत है, किंतु अचानक तभी उनमें से एक खाकी बड़ा कोट पहने हुए और सफ़ेद झंडा हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। गोली मत चलाना साथियों, कोई चिल्लाया और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। तब एक दूसरा जर्मनवासी और फिर एक अन्य ऊंची दीवार पर दिखाई दिया। नीचे झुक जाओ, मैंने अपने सैनिकों से कहा। यह एक चाल है, किंतु यह नहीं थी। ओके, वन ऑफ द Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausage. We meet you. Yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys. What are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. Okay. All along their lines and occurs, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. Okay. I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. Okay. यानी in this stanza, author says that, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि उनमें से एक जर्मन सैनिक अपने सिर के ऊपर बोतल लहरा रहा था। टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है। ओके। उसने कहा था कि टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है, हमारे पास मदिरा है और खाने का सामान है, हमें आपसे मिलना है। हाँ, और इस समय तक कई दर्जन जर्मन सैनिक सीमा पर बिना कोई बंदूक लिए हमारी तरफ आ गए थे। छोटा प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले उठा और बोला, लड़कों, आ जाओ, हम किसी बात का इंतजार कर रहे हैं। और तब कोई नहीं रुका। मैं एक अफसर था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। मैंने अनुमान लगाया, किंतु यह सत्य है कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। मैं देख सकता था कि उनकी पंक्तियां के साथ हमारे सैनिकों की पंक्ति भी एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे चल रही थी। स्लेटी और खाकी कोट बीच में मिल गए थे। मैं भी उनमें से एक था। युद्ध के मध्य हम शांति स्थापित करना चाहते थे। ओके, और कर भी रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, had outstretched hands. Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from
Dasselford. Okay. Dasseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. Okay. Please turn over. Captain Jim McPherson. I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि प्यारी कोनी, ओके यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि प्यारी कोनी, तुम मेरी भावनाओं के बारे में कल्पना नहीं कर सकती. ओके, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फिट्स ऑफिसर who approached me hand outstretched. ओके यानी प्यारी कोनी, तुम मेरी भावनाओं के बारे में कल्पना नहीं कर सकती जब मैंने जर्मन अफसर की आंखों में देखा जो मेरी तरफ हाथ हिलाए हुए आया. गर्म जोशी से मेरा हाथ थामते हुए उसने कहा, मैं डसलडोर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो एक वाद्य यंत्र बजाता हूँ. क्रिसमस की बधाई हो. ओके. कैप्टन जिम्स मैकपर्सन, मैंने उत्तर दिया, और आपको भी क्रिसमस की बधाई हो. मैं पश्चिमी इंग्लैंड में डोरसेट नामक स्थान पर एक स्कूली अध्यापक हूँ. ओके. आह डोरसेट, ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर माई rum ration and his excellent sauces, and we walked. Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all the new of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Madhsheva and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Okay, sorry. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything. And he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. Okay. यानी in this stanza author says that, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ओहो डोरसेट, वह मुस्कुराया, मैं इस स्थान को जानता हूँ. ओके यानी मैं इस स्थान को, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ. हमने मदरा और उसके उत्तम भोजन को बांट लिया, और कोनी, हम बात करते गए, और वह अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था, किंतु बाद में यह पता चला कि कभी डोरसेट नहीं गया था. वह जो है कभी डोरसेट नामक स्थान पर नहीं गया था, ना ही कभी इंग्लैंड गया था. उन्होंने जितना वह अंग्रेजी यानी इंग्लैंड के बारे में जानता था, स्कूल और अंग्रेजी की पुस्तकों में पढ़ा था. उसका प्रिय लेखक थॉमस हार्डी था और प्रिय पुस्तक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी. तो अब हम सीमा पर बैठे हुए बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट रॉय और डोरसेट के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है. उसकी एक पत्नी थी और 6 महीने पहले पैदा हुआ एक बेटा था. जब मैंने देखा तो मेरे चारों तरफ पूरी सीमा पर झुंडों में स्लेटी और खाकी रंग
धूम्रपान करते हुए, हंसते हुए, बातचीत करते हुए, शराब पीते हुए, खाते हुए दिखाई दे रहे थे। हैंस वोल्फ और मैंने तुम्हारे लिए अद्भुत क्रिसमस केक के बचे हुए हिस्से को खाया कोनी। उसने कहा कि अब तक खाए मार्सिपियन में उसे यह सबसे स्वादिष्ट लगा। मैं भी इससे सहमत था। हम सब बातों पर सहमत थे और वह मेरा शत्रु था। ओके। कोनी, इस तरह की क्रिसमस की पार्टी पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक है। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। यानी उसने कहा कि कोनी, इस तरह की क्रिसमस की पार्टी पहले कभी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। ग्रेट कोट्स वर dumped in piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fitz out in the middle of no man's land. Okay. Hans, Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said, after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि तब कोई नहीं, मैं नहीं जानता, एक फुटबॉल ले आया। ठीक है। वो जो है एक फुटबॉल ले आया और स्लेटी कोटों का गोल बनाने के लिए ढेरों के रूप में लगा दिया। ठीक है, लगा दिया गया। दूसरी बात यह थी कि युद्ध के मैदान में अब अंग्रेज और जर्मन आमने सामने थे। हैंस वुल्फ और मैंने एक दूसरे की ओर देखा, प्रसन्न हुए, ठंड को दूर रखने के लिए अपने पैर पटकते हुए तालियां बजाईं। तब एक क्षण भर के लिए मुझे महसूस हुआ कि हमारी सांसें एक दूसरे से हवा में मिल रही हैं। उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, उसने थोड़ी देर बाद कहा, मैं सोचता हूँ हम इस फुटबॉल मैच से युद्ध का अंत कर सकते हैं। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं होती। ओके। आई हैड प्रिफेयर cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Connie Fritz won 2-1, but as Hans Wolf generously, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। ओके। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। मैंने उसे बताया हम सब अंग्रेज शायद जीत के लिए आश्वस्त होते। हम इस बात पर हंसे और दोनों ही खेल को देखने लगे। कोनी, थोड़ी दुख की बात थी, जर्मन एक मुकाबले 2 गोल से जीत गए थे, किंतु हैंस वुल्फ ने उदारता से कहा, हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा चौड़ा था, अतः यह पूरी तरह ठीक नहीं था। ओके। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द स्नैप एंड द रम एंड द सॉसेज had long since run out and we knew it was all over. Okay. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and
we could all go home. Okay, यानी in this stanza author says that तब समय आ गया था कि और हम सब बहुत जल्दी हुआ, यानी समय आ गया था और ये सब कुछ जो है बहुत जल्दी हुआ जब खेल समाप्त हो चुका था, शराब और भोजन भी समाप्त हो चुका था और हम जानते थे कि सब समाप्त हो चुका है। मैंने हैंस को अलविदा कहा और इच्छा व्यक्त की कि वह जल्दी ही अपने परिवार से मिलेगा। युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और हम सब अपने घरों में लौट सकेंगे। ओके, that I think that is what every soldier wants on both sides. Hence Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, मैं सोचता हूँ कि दोनों ओर हर सैनिक यही चाहता है। हैंस वुल्फ ने कहा, जिम मैकपर्सन अपना ध्यान रखना, मैं कभी कभी यह क्षण नहीं भूलूंगा और ना ही तुम। उसने सैल्यूट किया और अनिच्छा से धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक बार दोबारा अलविदा कहने के लिए मुड़ा और फिर वह सैकड़ों स्लेटी कोटों वाले लोगों की भीड़ में शामिल हो गया जो अपने खंदकों की तरफ वापस जा रहे थे। ओके, दैट नाइट बैक इन आवर